సీనియస్ వార్తలకు స్వాగతం. నా పేరు జగన్నాథ్. నేటి వార్తలను ముఖ్యాంశాలు. మైనర్లకు వాహనాలు ఇస్తే కఠిన చర్యలు. వాహనాల తనిఖీలో 23 మందిపై కేసులు. వివరాలు వెల్లడించిన తాండూరు పోలీసులు. 10వ తరగతిలో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించాలి. బహదూర్పూర్ ఎమ్మెల్యే మహమ్మద్ ముబీన్. తాండూరులో 10th విద్యార్థులకు ఆల్ ఇన్ వన్ గైడ్ల పంపిణీ. మైనర్లకు వాహనాలు ఇస్తే కేసులు తప్పవంటూ తాండూరు పట్టణ సిఐ సంతోష్ కుమార్ హెచ్చరించారు. వయసు నిండకుండా వాహనాలు నడిపిస్తున్న మైనర్ల దూకుడుకు తాండూరు పట్టణ పోలీసులు కళ్లెం వేస్తున్నారు. జిల్లా ఎస్పీ నారాయణ రెడ్డి, తాండూరు డీఎస్పీ బాలకృష్ణారెడ్డి ఆదేశాలతో బుధవారం పట్టణంలోని కళాశాల సమీపంలో స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించారు. పట్టణంలోని చైతన్య జూనియర్ కాలేజీ, ఇతర కళాశాలల వద్ద వాహనాల తనిఖీ చేపట్టారు. 18 ఏళ్లలోపు ఉండి వాహనాలు నడిపిస్తున్న 23 మందితో పాటు వాహనాలు అందించిన యజమానులపై కేసులు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వాహనాలను సీజ్ చేయడంతో పాటు కేసులు నమోదు అయిన వారిని మెజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరుస్తామని పోలీసులు వెల్లడించారు. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు మైనర్లకు బైకులు నడిపేందుకు ఇవ్వరాదని సూచించారు. ఇది చట్ట ప్రకారం నేరమని అన్నారు. నిబంధనలు పాటించకుండా వాహనాలు అందిస్తే కేసులు నమోదు చేయడం జరుగుతుందని హెచ్చరించారు. వాహనాల తనిఖీలో పట్టణ ఎస్ఐ రమేష్ తో పాటు ట్రాఫిక్ ఎస్ఐ ఆనంద్, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. లైసెన్స్ తీసుకోవాలి. 10th క్లాస్ అవ్వగానే మనకి లైసెన్స్ అథారిటీ వస్తుంది. సో లైసెన్స్ తీసుకోవాలి. తర్వాత బండి నడుపుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి. నేను చెప్తున్నాను కదా, మీరు నడిపించేది రోడ్డు పైన. ఆ రోడ్డు పైన మీ సొంతం కోసం వేసుకున్న రోడ్డు కాదు. సో ఆ రోడ్డు పైన 10 మంది తిరుగుతారు. సో లారీలు వస్తాయి, ఆటోలు వస్తాయి, బస్సులు వస్తాయి, వేరే బైకులు వస్తాయి, కార్లు వస్తాయి. ఆ సమయంలో మీకు యాక్సిడెంట్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. సో మన బాడీ పార్ట్లో ఎక్కడ ఈ యాక్సిడెంట్ అయినా కూడా అది క్యూర్ అయ్యడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మన నర్వ్స్ అన్ని ఎక్కడ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి? హెడ్కే కదా. సో హెడ్కి ఏదైనా ఇంజూరీ అయితే మన బాడీలో ఏ పార్ట్ అయినా సరే పని చేయకుండా అయిపోతుందా లేదా? మరి హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి కదా. ఏమి పెట్టుకోవాలా లేదా? హెల్మెట్ వాడాలా లేదా? తర్వాత ఆల్మోస్ట్ నియర్గా ఉన్న వాళ్ళు వాకింగ్లో రండి. మీకు కూడా మంచిగా అలవాటు అయిపోతుంది, హెల్తీగా ఉంటారు వాకింగ్లో వస్తారు. డిస్టెన్స్లో ఉన్న వాళ్ళైతే ఒకే చెప్పలేక రావాలి. అతను కాశంపూర్ అంటే కాశంపూర్ నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి ఖచ్చితంగా కొద్దిగా డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. కానీ నువ్వు లైసెన్స్ తీసుకోవాలి, బండి హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి. లోపల ఉన్న వాళ్ళకి మంచిగా వాకింగ్ చేసుకుంటూ రావచ్చు కదా. అంటే క్యాష్నా అది బండి పైన వస్తే కానీ సమాజం గుర్తించాలన్న క్యాష్. టాలెంట్ ఉండాలా, బండి ఉండాలా? టాలెంట్ ఉండాలి. చదువుకోవడానికి ఏముండాలి? బండి ఉంటేనే చదువు చెప్తారా? నేను మీ కాలేజీలో బండి ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళకే చదువు చెప్తామని చెప్పి మన బోర్డు రాసిచ్చిరా? లేదు కదా. అంతేనా కదా? టాలెంట్ ఉండాలి, మంచిగా చదువుకోవాలి. మంచిగా చదువుకుంటే జాబ్లు వస్తాయి. జాబ్ రాకపోయినా కూడా ప్రైవేట్ జాబ్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి బయట. ఏమి ఆ ప్రైవేట్ జాబ్కి వెళ్ళాలని కూడా మీకు పోలీస్ వెరిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ అడుగుతా ఉన్నా. ఏ పెట్టి కేసు ఉన్నా, ఏదైనా నార్మల్ వేరే కేసు ఉన్నా, ఇవన్నీ ఏమున్నా కూడా మీకు ఆ ప్రైవేట్లో కూడా ఈవెన్ ఆఫ్టర్ సెక్యూరిటీ గార్డ్గా కూడా పెట్టుకోవట్లేదు ఈ మధ్య. మా దగ్గర రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటారు కదా, పోలీస్ వెరిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ కావాలండి. సార్ ఏంటి మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి ఇంతగానో క్లాసులు చెప్తున్నారు. 10వ తరగతిలో విద్యార్థులు ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించాలని హైదరాబాద్ బహదూర్పుర ఎమ్మెల్యే మహమ్మద్ ముబీన్ అన్నారు. బుధవారం ఎంఐఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో తాండూరు పట్టణంలోని ప్రభుత్వ నెంబర్ 2 ఉర్దూ మీడియం స్కూల్ విద్యార్థులకు సలార్ ఏ మిల్లత్ వారి సహకారంతో ఆల్ ఇన్ వన్ గైడ్ల పంపిణీ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే మహమ్మద్ ముబీన్, కార్పొరేటర్ మహమ్మద్ ఖాదర్తో కలిసి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. వారి చేతుల మీదుగా 10వ తరగతి చదువుతున్న 190 మంది విద్యార్థులకు గైడ్లను పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మహమ్మద్ ముబీన్ మాట్లాడుతూ 10వ తరగతి ఫలితాల్లో విద్యార్థులు ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించాలనే ఉద్దేశంతో గైడ్లను పంపిణీ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. గత కొన్నేళ్లుగా పరీక్షలకు ముందు విద్యార్థులకు గైడ్లను పంపిణీ చేస్తున్నట్లు గుర్తు చేశారు. విద్యార్థులు ఎలాంటి ఒత్తిళ్లకు గురికాకుండా చదువుకోవాలని సూచించారు. ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించి ఉన్నతంగా ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంఐఎం పార్టీ తాండూరు పట్టణ అధ్యక్షులు ఆది షహరీ, కార్యదర్శి బిఆర్ యూనిస్, కోశాధికారి నబీ సాబేర్, దారూర్ మండల అధ్యక్షులు మొయిజ్ కురేషి, నాయకులు వసీం ఫారూక్, పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. जनाब बिआर यूनुस साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अब्दुल कादर जज़ाकल्लाह खैर। मैं जनाब जज़ाकल्लाह मैं उसके बाद जनाब मोइज साहब जो दारुल के सदर है, मैं उनकी गुरबशी जनाब हमारे प्रिंसिपल जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल मैडम हैं, उनकी गुरबशी स्कूल के नीचे
जनाब अयाज साहब को गुजारिश करता हूँ कि वो मोहम्मद फेरोज साहब और ये स्कूल के मैडम की तरफ जो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के मैडम हैं उनके तरफ से एमएलए साहब को गुलपोशी और अयाज साहब सामने अयाज मोइन भाई फेरोज साहब के और सलीम साहब की गुलपोशी और शानपोशी करें। मैं जनाब सलीम पाशा साहब से गुजारिश करता हूं कि वो एमएलए साहब की शानपोशी और गुलपोशी करें। मैं जनाब शौकत साहब से गुजारिश कर भाई उधर हटो, भाई उधर हटो, उधर उधर हटो। मैं जनाब फारूक साहब से गुजारिश करें। मोहम्मद फारूक साहब। मैं गाइड लेके अपने अपने जगह बैठ जाइए। इसके बाद शाहीपुर इंदिरा नगर के आ जाइए पूरे इंदिरा नगर। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। नंबर 1 स्कूल शाहीपुर। आइयो मत जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। जल्दी आओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ। शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमको आपके दरमियान में यहाँ पर आने की तौफीक दी और हमारे एमएलए साहब की मौजूदगी में तांडूर के 5 स्कूल के जो उर्दू मीडियम के तलबा और तालिबात हैं, जुमला 199 तलबा और तालिबात हैं और यहाँ से हटकर अतराफ में यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर एक उर्दू मीडियम स्कूल है और 20 किलोमीटर दूर पर एक स्कूल कायम है। वहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर ये जो गर्ल्स स्कूल के मैडम है, प्रिंसिपल हेडमास्टर मैडम है, मैं उनका और उनके स्टाफ का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको
हमेशा की तरह इस साल भी यहाँ पर एक प्रोग्राम करने की इजाज़त दी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर हमारे इस प्रोग्राम के अंदर कुछ तकलीफ थोड़ी बहुत अगर बच्चों को या मैडम को या स्टाफ को पहुँची होंगी तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको माफ़ कर दें। और दूसरी रही बात ये कि आप बच्चों से मेरी गुजारिश है कि तालीम के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। इस वजह से बच्चों के लिए माँ का पहला गोद होता है, फिर ऊपर से अगर उस बच्चे की माँ तालीम याफ्ता है तो उस खानदान के लिए, उस महल्ले के लिए और उस शहर के लिए बहुत बड़ा मुकाम मिलता है। क्योंकि एक तालीम याफ्ता माँ अपने बच्चे को जिस तरह तरबियत देना चाहती है वो बगैर तालीम याफ्ता माँ नहीं दे सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू मीडियम से कई बच्चे और बच्चियां यहाँ तालीम हासिल कर कर बड़े बड़े पोस्टों पर पहुंच चुके हैं। सालार मिल्लत अलहाज मोहम्मद सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब का ये ख्वाब था कि मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज़ के बच्चे आगे बढ़ें और तालीम हासिल करें। मैं आप लोगों से, आप बच्चों से और बच्चियों से सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूँ, तालीम के बगैर हमारा मुस्तकबिल नहीं है, तालीम के बगैर हमारा घर अंधेरे में है। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपने वालिदैन का, अपने ख़ानदान का, अपने असातिज़ा का, अपने स्कूल के टीचर्स का नाम रोशन करने के लिए अच्छी तालीम पढ़िए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, जिस्तजू कीजिए। और मैं इसी के साथ साथ हमारे जो एमएलए साहब बहादुरपुरा के मुबीन साहब यहाँ पर आए हैं, उनका और हैदराबाद से आए हुए हमारे कारपोरेटर और हमारे मोहित साहब जो यहाँ के धारूर के रहने वाले हैं, वहाँ के जिम्मेदार हैं, और हैदराबाद के जितने भी यहाँ पर जिम्मेदार हैं और तांडूर के यहाँ पर जिम्मेदार मौजूद हैं स्टेज के ऊपर। सैयद साजिद अली साहब हैं जो फ्लोर लीडर भी थे, साबिका वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं, और जमात के जिम्मेदार यहाँ पर BR यूनुस साहब जनरल सेक्रेटरी और जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और मलिक साहब और समद साहब और अब्दुल वसीम साहब और अब्दुल मतीन साहब, फारूक साहब और मोहसिन मलाला साहब, शौकत साहब और हमारे मोईद अयाज साहब और जितने भी यहाँ स्टेज पे बैठे हुए हैं और सामने ठहरे हुए हैं, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रोग्राम में आपने हमारा साथ दिया और इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप लोग भी कोशिश में लगे हुए हैं। मैं इतनी बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। इत्तेहादुल मुस्लिमीन तांडूर शहर के सदर जनाब अब्दुल हादी साहब, साबिका वाइस चेयरमैन जनाब साजिद साहब और हैदराबाद से आए हुए कॉरपोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोहम्मद सागर साहब, जनाब गफ्फार खान साहब और इस स्कूल के हेड मास्टर साहबा और स्टाफ रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज बड़ी खुशी व मसरत का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी साहब मेंबर पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर हैदराबाद से आज हम तांडूर और कोड़ंगल दीगर इलाकों के अंदर जो 10वीं जमात के तलबा और तालिबा है उनमें ऑल इन वन बैग्स को तकसीम करने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमाम वकाराबाद, आलमपल्ली, कुत्तागड़ी और मरपल्ली, मोमिनपेट, पटलूर इन इलाकों के अंदर तकसीम किए गए। उसके बाद आज तांडूर और कोड़ंगल और बीच में एक मुकाम है, वहाँ पर जाकर आलिम पेपर्स को तकसीम किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम सदर सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब अलैहि रहमा की ये कोशिश थी कि जो उर्दू मीडियम स्कूल्स के अंदर तालीम हासिल करते हैं बच्चे और बच्चियाँ, उनको तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर उस वक्त के सालार मोहतरम ने इस स्कीम का आगाज़ हैदराबाद और सिकंदराबाद से किया और उसके बाद आगे बढ़ते हुए मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के अंदर, सारे आंध्र प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ उर्दू मीडियम स्कूल्स के अंदर हमारे बच्चे तालीम हासिल करते हैं उनमें इस बुक्स को तकसीम का अमल शुरू हुआ। अलहदा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश होने के बाद सारे तेलंगाना के स्कूल्स के अंदर भी
आज ये मॉडल पेपर को तकसीम किया जा रहा है। इसका मकसद और मंशा एक ही है कि जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो 9th क्लास पास होकर 10वीं जमात में जब बोर्ड एग्ज़ाम लिखने के लिए जाते हैं तो उनको बआसानी से जो सवालात क्वेश्चन पेपर के ज़रिए सवालात आते हैं उनको हल करने के लिए जो मॉडल पेपर जो ऑल इन वन के अंदर 6 सब्जेक्ट्स है, जो तेलुगु यानी कि उर्दू मीडियम के 6 सब्जेक्ट्स है इसके अंदर, उसमें जो गेस्ट पेपर होता है कि जो हमारे 10th के एग्ज़ाम में क्या आएगा, तो एक गेस्ट पेपर के तौर पर इसको बनाया गया है ताकि ये बच्चे अच्छा पढ़ के जाकर स्कूल के अंदर जब एग्ज़ाम के बोर्ड एग्ज़ाम लिखते हैं तो उसके अंदर अच्छे निशानात से कामयाबी हासिल करें। क्योंकि आज ये जो बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आपकी पहली सीढ़ी है जो 10वीं जमात, आप इसके अंदर अच्छे निशानात से कामयाबी हासिल करेंगे तो बआसानी से आपको इंटरमीडिएट के अंदर दाखिला मिलेगा। उसके बाद में आपको इंटरमीडिएट के 2 साल मुकम्मल करने के बाद आपको ग्रेजुएशन करने में आपको मदद मिलेगी। क्योंकि आज के इस दौर के अंदर हमको तालीम के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। अगर हमारे पास तालीम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर हमको अच्छा इंसान बनना है, अच्छा पढ़ लिख कर हमको अच्छा शहरी बनना है तो हमको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि तालीम नहीं है तो फिर कुछ भी हम नहीं आगे बढ़ सकते। क्योंकि आज हिंदुस्तान हमारा इतना तरक्की आपका मुल्क बनता जा रहा है तो उसमें हमको भी चाहिए कि हम भी, हमारे बच्चे भी जो 10वीं जमात इंटरमीडिएट फिर उसके बाद अच्छा ग्रेजुएशन कर IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर या डॉक्टर या इंजीनियर या प्रोफेसर, इस तरीके से वो अपने बड़े बड़े ओहदों के पर फायज होंगे तो यकीनन जो स्कूल के अंदर आप तालीम हासिल करते हैं उस स्कूल का नाम भी रोशन होगा, उस शहर का नाम रोशन होगा, आपके स्टेट का नाम रोशन होगा। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जहाँ पर जहालत तो इतना बड़ा आज पूरे मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं कि जब लड़की की हम शादी कर देते हैं तो हम माँ बाप ये समझते हैं कि 10वीं जमात पढ़ाने के बाद में बच्ची को तालीम क्या करना है, शादी कर दे देना है, तो ऐसा नहीं है। बल्कि बच्ची को अपने को अगर तालीम के जेवर से आरास्ता कर उसको एक अच्छे अपने पैरों पर ठहर कर अगर वो उसकी शादी जब करके देते हैं तो यकीनन आने वाली नस्ल और उसका ख़ानदान एक अच्छा पढ़ा लिखा होगा। क्योंकि अगर हम ऐसी तरीके से जहालत के तौर पर अगर हम बच्ची दे देते हैं लेकिन वहाँ जाने के बाद में साफ ससुराल के अंदर किस तरीके से बच्चियों के ऊपर जुल्म ढाले जा रहे हैं, हम टीवी के जरिए पेपर के जरिए पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों को जलाया जा रहा है। किस वजह से? जहालत है। क्योंकि अगर तालीम होती तो इस तरीके की हरकत नहीं करते। आज बच्ची की जिंदगियों से हम खेल रहे हैं तो लिहाजा हमको चाहिए कि हम जितना बच्चे को पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा अगर हम बच्ची को पढ़ाएंगे तो यकीनन आने वाली नस्ल और वो ख़ानदान जिस घर में भी वो जाएगी अपने कफालत करेगी, अपने बच्चों की, अपने शौहर की, अपने सास ससुर की खिदमत करेगी और अच्छा अपने घर को माहौल को सुधारेगी। तो लिहाजा मैं माँ बाप से, पेरेंट्स से कहूँगा कि आप बच्चियों को खूब पढ़ाइए, खूब पढ़ाकर उसको डॉक्टर, इंजीनियर, लायर बनाइए। क्योंकि आज हम इस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये कोशिश है कि सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को बच्चों को अच्छा तालीम के जेवर से आरास्ता करें। आज आप देखिए कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी साहब अपने हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे के अंदर किस तरीके से आज तकरीबन 24,000-25,000 से ज़्यादा बच्चे आज उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ओवैसी एक्सटेंशन स्कूल के नाम से चलाते हैं। वहाँ पर फ्री तालीम दी जाती है, बच्चों को यूनिफॉर्म फ्री, एजुकेशन फ्री और उनको अच्छे बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कूल से ज़्यादा वहाँ पर अच्छे बिल्डिंग्स को बनाया गया है। आज वहाँ पर तालीम दी जा रही है। तो ये कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी साहब कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं आप लोगों से फिर एक बार मैं अपील करता हूँ कि आप लोग अच्छा पढ़िए। 10वीं जमात के अंदर आप जो गाइड किए जा रहे हैं उसके अंदर आप अच्छा पढ़ लिख कर एग्ज़ाम के अंदर कामयाबी हासिल कीजिए ताकि आप अच्छा बोर्ड एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल कर इंटरमीडिएट में आप जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे आपके लिहाज से आप क्या करना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो अक्सर ये होता है कि बच्चा हो या बच्ची हो पढ़ना एक चाहती है तो माँ बाप लेकर जाकर एक सब्जेक्ट दिला देते हैं।
बच्ची पढ़ना चाहती है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो वालिद साहब कहते हैं नहीं तुमको नहीं पढ़ना है, तुमको बैंक अकाउंटेंट बनना है। इस तरीके से उनको थोपा जाता है। तो इस तरीके से नहीं, जो बच्चा और बच्ची की ख्वाहिश है, जिसके अंदर वो अच्छा परफेक्ट पढ़कर कामयाबी हासिल कर सकती है, वही सब्जेक्ट को दिलाएं ताकि वो अपने उसको बेस बनाकर वो आगे बढ़ सके। तो लिहाजा मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे HM मैडम साहबा का, स्टाफ का और हमारे तानूर के सदर साहब का, यहाँ की टीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमको यहाँ पर आने का मौका मिला। నేటి వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి వచ్చే